کا تعلق تمناؤں سے نہیں ہے. لیس بامانیکم ولا بامانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جنت نہ تمہاری تمناؤں پر ہے نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر ہے. ہمارے ہاں نظام یہ ہے کہ جو برا کام کرے گا اس کو اسی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، اسی کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو گرفت کا نظام ہے اس نظام سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے. تو آج الحاد اور بے دینی کے نتیجے میں سب سے بڑا نقصان انسان کا یہ ہوا کہ وہ اس کا سکون غارت ہو گیا ہے. انسان حیرت اور قلق کی زندگی گزار رہا ہے، اضطراب کی زندگی گزار رہا ہے. بہت پیسہ ہے اس کے پاس، بہت وسائل ہیں، لیکن سکون اور اطمینان اس سے چھین لیا گیا ہے، برکتیں چھین لی گئی ہیں، اور دنیا میں طرح طرح کی بربادیاں اور تباہیاں ان کے اوپر مسلط کی جا رہی ہیں. جو انجام ہے اور نتیجہ ہے اللہ کی معصیت کا اور نافرمانی کا. اللہ کا جو بنایا ہوا نظام ہے وہ نظام اپنی جگہ پہ اٹل ہے. میرے بھائیوں، یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی ہیں کہ اس مسئلے پر سنجیدگی کے ساتھ ہمیں بھی غور کرنا ہے، آپ کو بھی غور کرنا ہے. ہر فرد کو جو اپنے مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے اس کو غور کرنا چاہیے سنجیدگی کے ساتھ، اور ان تمام برائیوں سے کنارہ کش ہو کر اللہ کی اطاعت اور اللہ کی طرف رجوع کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے دین میں بصیرت عطا فرمائے، اور ہر طرح کی فحاشی، بے حیائی اور گناہوں سے اور الحاد اور بے دینی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. ہم بات کریں گے برتھ ڈیفیکٹس کے بارے میں، آرگنز کا تیاری میں پرابلم رہتا ہے اس کے بارے میں، اینڈ کیسا اس کا ٹریٹمنٹ کرنا، اینڈ کتنا جلدی کرنا، اینڈ کب کرنا. آداب ڈاکٹر میں ہم بات چیت کریں گے کچھ برتھ ایبنارملٹیز کے بارے میں اور جانیں گے ان برتھ ڈیفیکٹس کا علاج. ڈائل کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380. آداب ڈاکٹر اس جمعرات شام 5 بجے صرف ETV اردو پر. خوبی یہی نہیں ہے کہ انداز و ناز ہو، خوبی یہی نہیں ہے کہ انداز و ناز ہو، معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو، معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو. ETV اردو پر اگلا پروگرام. آداب. ETV اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ETV انڈیا. سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر. کل راجیہ سبھا میں منظوری کے بعد لوک پال بل آج لوک سبھا میں پیش کیا جائے گا. بل کی منظوری کے بعد انشن ختم کرنے کا انا ہزارے نے کیا اعلان. سفارتکار کی گرفتاری معاملے پر ہندوستان اور امریکہ میں ٹھنی. امریکی سفارتکاروں کی مراعات میں کی گئی کمی. امریکہ نے اپنے سفارتکاروں کی سیکیورٹی کو اولین ترجیح دیا قرار. دہلی میں حکومت سازی پر غیر یقینی کیفیت برقرار. کانگریس سے اتحاد کے معاملے پر عام آدمی پارٹی عوام سے ہوگی رجوع. آج عوامی شعبے کے ہزاروں بینکوں میں کام کاج ہو سکتا ہے متاثر. ٹریڈ یونینوں کی ایک روزہ ہڑتال. اور ہندوستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا آج سے آغاز. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ترمیم شدہ لوک پال بل کو راجیہ سبھا نے منظوری دے دی ہے. آج لوک سبھا میں اس پر بحث ہوگی. As amended be passed. The question is that the bill as amended be passed. Those in favor will please say aye.
Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill as amended is passed. 5 घंटे की बहस के बाद राज्यसभा में लोकपाल बिल मंजूर कर लिया गया। समाजवादी पार्टी ने इस बिल की शदीद मुखालफत की। उसने बतौर एहतजाज ऐवान से वॉकआउट किया। समाजवादी पार्टी को बिल की बाज तजावीज पर एतराज है। हुकूमत ने इसे तारीखी लम्हा करार देते हुए इस बिल की हिमायत करने वाली सभी जमातों का शुक्रिया अदा किया है। लोकपाल बिल आज राज्यसभा ने पास किया है। मैं सब पार्टियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गवर्नमेंट का इस बिल जो गवर्नमेंट ने पेश किया था उसका समर्थन किया है। मुझे विश्वास है कि कल या परसों लोकसभा में भी ये सर्वसहमति से पास होगा। ये एक ऐतिहासिक दिन इसीलिए है कि आवश्यकता थी और पूरे देश की मांग थी और समय आ गया था कि जो परिस्थितियां देश में उत्पन्न हुई थी कि इस प्रकार का एक कानून बने ताकि जो विश्वास लोगों को व्यवस्था में और राजनीति में जो विश्वास उठ रहा था ये विश्वास फिर से कायम हो। राजनीतिक दलों का योगदान का और श्रेय भी सभी को जाता है कि उन्होंने राजनीति से उठकर एक ऐसा फैसला किया है जो जनता चाहती थी, क्योंकि जनता करप्शन से त्रस्त है। राज्यसभा में बिल की मंजूरी महज एक रस्म थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अलावा सभी जमातें इसकी हिमायत कर रही थी। स्वागत योग्य है। मैं यही कहूंगा कि देश में जो भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो ईमानदार हैं उनको काम करने का अवसर मिलना चाहिए, और ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि सिर्फ वही ईमानदार हैं और बाकी भ्रष्ट है उनको भी समझना चाहिए कि देश का संसदीय लोकतंत्र चुनौती आती है तो अवसर के अनुसार खड़ा उतरता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम को और तेज करने के लिए और इसको एक निर्णायक और ले जाने के लिए ये जरूरी था कि सभी जो निजी कंपनियां हैं, सभी जो संस्थाएं हैं, अगर फॉरेन फंडेड एनजीओ हो या जो भी हो, जो सरकारी काम करते हैं और सरकार से पैसे लेते हैं उस काम के लिए, इन सबको भी लोकपाल के तहत लाना चाहिए था। इस बिल पर लोकसभा में बुध के रोज बहस होगी। 2011 में ऐवान नुमाइंदगान ने इस बिल को मंजूरी दी थी। ताहम राज्यसभा में बिल पर खूब हंगामा हुआ था, जिसके बाद इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया था। सेलेक्ट कमेटी ने इस बिल पर वसीतर इत्तेफाक राय बनाने के लिए कई तरामीम की सिफारिश की थी, जिसे काबीना ने मंजूरी के बाद मसवदे में शामिल किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर लोकपाल पर समाजवादी पार्टी अपने मौकफ पर कायम है। नहीं, देखिए, वोटिंग हम किसी ऐसे विधेयक के विरोध में नहीं है जिससे भ्रष्टाचार रुक रहा हो, लेकिन सिर्फ वोटों के खातिर दिखावे और भय के कारण जिस तरह विधेयक लाया गया उसके स्वरूप के हम खिलाफ थे। और मेरा आज भी मानना है कि इस विधेयक से देश की प्रगति रुक जाएगी। कोई मिनिस्टर, कोई एमपी, कोई सेक्रेटरी फाइलों पे दस्तखत नहीं करेगा। राज्यसभा में बिल को मंजूरी मिलने पर अन्ना हजारे ने खुशी का इजहार किया है। ताहम उन्होंने कहा कि लोकसभा में बिल की मंजूरी तक उनका अनशन जारी रहेगा। बिल की मंजूरी को यकीनी बनाने की उन्होंने अपील की। और देश की आवाज सुनकर राज्यसभा में बैठे हुए समाजवादी पार्टी को छोड़कर सभी पक्ष और पार्टियों ने इस बिल को जो सपोर्ट किया है, इसलिए जनता के तरफ से मैं इन सबको धन्यवाद देता हूं। अभी कल यह बिल लोकसभा में आएगा और मुझे विश्वास है राज्यसभा में पास हो गया ना, अभी लोकसभा में पास होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। क्यों? लोकसभा में बैठे हुए, राज्यसभा में बैठे हुए जितने भी हमारे सांसद हैं, उनको ये अभी महसूस हो रहा है कि देश की जनता भ्रष्टाचार के विरोध में कानून मांगती है।
कि देश की जनता को भ्रष्टाचार के विरोध में ये कानून मांगती है लोकपाल, ये महसूस होने लगा है। और इसीलिए आज राज्यसभा में पास हो गया है, कल लोकसभा में भी पास हो जाएगा, और लोकसभा में पास होने के बाद मैं अपना मिशन छोड़ दूंगा। सिफारतकार की गिरफ्तारी मामले पर हिंदुस्तान ने अमेरिका की खबर ली है। नई दिल्ली ने अमेरिकी सिफारतकारों और उनके अहल खाना को हासिल मुराद कम कर दिए हैं। उसके साथ साथ हिंदुस्तान ने सिफारत खाना और कौंसिल खाने के सभी अमले से शनाख्ती कार्ड जमा करने को कहा है। देवयानी खोब्रागडे की गिरफ्तारी मामले पर हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच ठन गई है। न्यूयॉर्क में नायब कौंसल जनरल देवयानी खोब्रागडे के साथ किए गए नाशाइस्ता सलूक पर यूं तो हिंदुस्तान सख्त एहतजाज पहले ही दर्ज करा चुका है और अमेरिका ने भी ये उम्मीद जताई थी कि इस एपिसोड का असर हिंद अमेरिका ताल्लुकात पर नहीं पड़ेगा, लेकिन वॉशिंगटन ने इस पूरे मामले पर मुआजरत खाही नहीं की, जिसका नई दिल्ली ने सख्त नोट लिया। नई दिल्ली ने अमेरिकी सिफारतकारों को हासिल खुसूसी मुराद कम कर दिए हैं। सिफारतकारों की एयरपोर्ट पास की सहूलत वापस ले ली गई है। इसके साथ साथ मशरूबात के इंपोर्ट क्लियरेंस पर भी रोक लगा दी गई है। नई दिल्ली ने अमेरिकी सिफारतकारों को शिनाख्ती कार्ड जमा करने की हिदायत भी दी है। इतना ही नहीं, दिल्ली ने अमेरिकी सिफारत खाना और कौंसिल खाने में खिदमात अंजाम दे रहे हिंदुस्तानी मुलाजमीन को दी जाने वाली तनख्वाहों की भी तफसीलात देने को कहा है। अमेरिकी स्कूलों में बरसरे खिदमत टीचरों के वीजा की तफसीलात भी नई दिल्ली ने वॉशिंगटन को फराहम करने की हिदायत दी है। इन सब हिदायत के साथ साथ नई दिल्ली ने अमेरिकी सिफारत खाने के बाहर से सभी बैरिकेड्स हटा लिए हैं। I appreciate the steps the Ministry of External Affairs has taken. More steps should be taken against the United States until they give an unconditional apology for what is happening. हुकूमती सतह पर जारी इन सरगर्मियों के दरमियान देवयानी खोब्रागडे के वालिद ने वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की। वजीर दाखिला ने उन्हें ये यकीन दहानी कराई कि देवयानी को इंसाफ दिलाने की हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी। उन्होंने मुझे ये बताया कि दे आर अवेयर ऑफ दैट, दे आर फुली कन्विंस्ड दैट माय डॉटर इज बीइंग अननेसेसरी humiliated, harassed. It is a clear violation. The Khurshid said that is a clear violation of the human right what they have done, the violation of Geneva Convention. So government is working in every manner to ensure that no harm is done to my daughter. इससे कबल अमेरिकी अरकान पार्लियामेंट के वक्त से वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी और बीजेपी के वजारत उज़्मा के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने मुलाकात नहीं की थी। हत्ता के लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार और कौमी सलामती मुशीर शिव शंकर मेनन ने भी अमेरिकी वक्त से मुलाकात नहीं की थी। शायद ये पहली बार हुआ है कि अपने डिप्लोमेट के साथ हुई बदसलूकी पर भारत सरकार ने अमेरिका को चुनौती दे दी हो। अब शायद जाते जाते मनमोहन सरकार को इस बात का एहसास हुआ है कि चाहे आम नागरिक हो या फिर डिप्लोमेट, उनके साथ हुई बदसलूकी को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ शैलेंद्र वांगू, ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। अमेरिका ने वियना कन्वेंशन की पासदारी करते हुए इसके सिफारतकारों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हिंदुस्तान से अपील की है। हिंदुस्तानी खातून सिफारतकार के साथ अमेरिका में गैर इंसानी सलूक के बाद नई दिल्ली की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात के बाद अमेरिका का ये बयान सामने आया है। खारजी उमूर से मुतालिक अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान मैरी हाफ ने अपनी रोजाना की ब्रीफिंग में सवालात के जवाब देते हुए कहा कि आला सतह पर हिंदुस्तान से अमेरिका को वाबस्ता उम्मीदों से मुतालिक जानकारी दे दी गई है। मैरी हाफ ने कहा कि हमें उम्मीद है कि वियना कन्वेंशन की पासदारी करते हुए हिंदुस्तान सिफारती ताल्लुकात की अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएगा। मैरी हाफ का कहना है कि हिंदुस्तान में तैनात अमेरिकी सिफारतकारों की सिक्योरिटी अमेरिका की अव्वलीन तरजीह है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे।
इंटरनेशनल मॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। उत्तरी भारत में मोदी की लहर। पूरी ताकत से बोलेंगे यस वी कैन। क्या ये है आने वाले कल की तस्वीर? लोकसभा चुनाव तक रहेगा बरकरार नरेंद्र मोदी का जादू। देखिए मोदी का मिशन आज रात 9 बजे। 2004 में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि वो 35 से हम 28 आए हैं, बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पे दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ईटीवी इंडिया। दिल्ली में हुकूमत साजी के मामले पर तातुल खत्म होता मालूम नहीं हो रहा है। कांग्रेस से हिमायत ली जाए या नहीं, आम आदमी पार्टी अब इस पर आम आदमी की राय लेगी। कौशाम्बी में केजरीवाल ने साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रही है, बल्कि वो जिम्मेदारी उठाने के लिए शफाफ तरीका इख्तियार कर रही है। आम आदमी पार्टी कश्मकश में है, वो कांग्रेस का हाथ थामे या फिर इलेक्शन को तरजीह दे, या ये ताने सुनती रहे कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। आम आदमी पार्टी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, इसलिए वो हुकूमत साजी पर अवाम की राय हासिल करना चाहती है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं हमें क्या करना चाहिए। हम बाकी दलों की तरह बंद कमरे में निर्णय नहीं लेना चाहते। हम ये प्रश्न जनता के सामने रख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ चंद लोगों की पार्टी नहीं है, बल्कि इस देश के आम लोगों की पार्टी है। अवाम अपनी राय SMS, फोन या पार्टी की वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं। राय लेने का ये अमल इतवार तक जारी रहेगा। उसके बाद पार्टी आगे का लाहे अमल तय करेगी। पूरी दिल्ली की जनता को ये चिट्ठी लिखी जा रही है। हम ये चिट्ठी लिख रहे हैं। इस चिट्ठी की लगभग 25 लाख कॉपीज बनाई जा रही हैं और ये पूरे दिल्ली के अंदर बांटी जाएंगी चिट्ठियां। संडे तक हम इन तरीकों से भी करेंगे और हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं 70 विधानसभाओं में, पूरी दिल्ली में हर म्युनिसिपल वार्ड में एक एक जनसभा की जाएगी और जनसभा में ये चिट्ठी पढ़ के सुनाई जाएगी और जनता से उनकी राय पूछी जाएगी। ये सारी प्रक्रिया हम इस संडे को शाम तक कर लेंगे
और जो जनता की राय होगी वो जनता की राय हम सोमवार को सबको बता देंगे, सारा कंपाइल करके, और जो जनता कहेगी हम सोमवार को वही काम करेंगे। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस और बीजेपी ने मदद की पेशकश की थी, जिस पर आम आदमी पार्टी ने इन दोनों जमातों के सामने कुछ शर्तें रखी थीं। कांग्रेस ने जवाब दिया, जबकि बीजेपी ने तो जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। 31 सीटें हासिल करने वाली बीजेपी जोड़ तोड़ का हवाला देकर हुकूमत न बनाने की बात कह चुकी है। ये पहला मौका है जब इत्तेहाद के लिए कोई जमात अवाम से रुजू कर रही है, वरना जमहूरियत में हुकूमत साजी के अमल में अवाम का रोल वोट देने तक ही महदूद रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर कांग्रेस ने इत्तेहाद पर अवाम की राय लेने के आम आदमी के फैसले पर ये रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। ये उनका फैसला है, उसमें हमको कोई एडवर्स कमेंट नहीं करना चाहिए। हम उनको सरकार बनाने के लिए बाहर से पेश करेंगे कि हम बाहर से आपको समर्थन देंगे। सरकार बनाना न बनाना उनके हाथ में है, मुझको उस पर कुछ नहीं करना चाहिए। ये जरूर है कि टेलीफोन कंपनी वाले उनको बहुत धन्यवाद दे रहे होंगे कि SMS और टेलीफोन के बिल से टेलीफोन कंपनियों को कुछ फायदा हो, लेकिन जनता का तो नुकसान हो रहा लगातार। अब ये उनको सोचना है। वो जनता से चुन के आए हैं, वो जनता के प्रतिनिधि भी हैं। 28 लोग उनके जनता से दिल्ली ने चुन के भेजे हैं, उनको बड़ी कामयाबी दी है, तो उनको भी सोचना चाहिए कि जनता ने जिस अपेक्षा से वोट दी है, अगर अवसर मिल रहा है तो उनको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और हम समझते हैं कि ये संदेश उनके खिलाफ जा रहा है कि वो सरकार बनाना नहीं चाहते हैं, वो जिम्मेदारी समझना चाहते हैं, जो वादे कर लिए उसको पूरे नहीं कर सकते हैं। इन कारणों से उनके खिलाफ मैसेज गलत जा रहा है, इसलिए आगे बढ़ के जो उचित संवैधानिक कार्रवाई है वो करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए चंद महीने का वक्त रह गया है। 4 रियासतों में हार का मुंह देखने के बाद कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में बेहतर मुजाहिरा करना चाहती है। इस सिलसिले में कांग्रेस चुनाव की हिकमत अमली का आज ऐलान करेगी। आज सोनिया गांधी की क़यादत में कांग्रेस के MPs की मीटिंग होने वाली है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी आज लोकसभा चुनाव के लिए हिकमत अमली का ऐलान करेंगी। 4 रियासतों के असेंबली चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस सदर पार्टी के अरकान पार्लियामान से तबादले ख्याल करेंगी। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की जनरल बॉडी की मीटिंग से सोनिया गांधी और वजीर आजम मनमोहन सिंह खिताब भी करेंगे। पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की मीटिंग 17 जनवरी को मुनक्किद की जाएगी और उसी दिन वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए राहुल गांधी को उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा सकता है। आइंदा माह मुनक्किद होने जा रही AICC की मीटिंग में पार्टी में गैर मामूली तब्दीलियों का कयास लगाया जा रहा है। कुछ पार्टी ओहदेदारों को तब्दील किया जा सकता है। ऐसी भी इत्तलात हैं कि कुछ मरकजी वज़रा को लोकसभा चुनाव की निगरानी और तशहीरी मुहिम के लिए मुंतखब किया जाएगा। पार्टी की क़यादत वाली रियासतों में वज़ीर आला के ओहदों पर चेहरों की तब्दीली के भी इम्कानात हैं। पार्टी में कई लीडरों का एहसास है कि असेंबली चुनाव में हार की असल वजह महंगाई रही है। इस तनाजुर में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की आज की मीटिंग को चुनाव के लिए कारकुनों को तैयार करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। अवामी शोबे के बैंकों में आज कामकाज मुतासिर हो सकता है। बैंक मुलाजमीन की बेशतर यूनियनें अपने मुतालबात को लेकर आज एक रोजा हड़ताल पर हैं। तनख्वाहों में इजाफे और दीगर मुतालबात को लेकर मुलाजमीन ये हड़ताल कर रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के कन्वीनर CH वेंकटचलम ने कल खबर रसां एजेंसियों से बात करते हुए कहा कि इंडियन बैंक एसोसिएशन और मुलाजमीन यूनियनें के दरमियान बातचीत की नाकामी के बाद हड़ताल पर जाने का फैसला लिया गया। ट्रेड यूनियनें के लीडरों ने तनख्वाह में 5% इजाफे की पेशकश को मुस्तरद कर दिया और हड़ताल पर जाने का फैसला लिया। मुल्क के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सार्फिन को हड़ताल के ताल्लुक से इत्तला पहले ही दे दी है। 9 यूनियंस आज की हड़ताल में शामिल हैं। मुल्क भर में अवामी शोबे के 27 बैंकों की 50,000 के करीब शाखें हैं, जिनमें आज कामकाज मुतासिर रहेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर। कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं, तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित।
उत्तरी भारत में मोदी की लहर। पूरी ताकत से बोलेंगे यस वी कैन। क्या ये है आने वाले कल की तस्वीर? लोकसभा चुनाव तक रहेगा बरकरार नरेंद्र मोदी का जादू? देखिए मोदी का मिशन आज रात 9 बजे। ब्रेक के बाद एटीवी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हिंद पाक सरहद पर कशीदगी को कम करने के लिए कोशां हैं। इसी सिलसिले में दोनों मुल्कों के दरमियान डीजीएमओ सतह की बातचीत 24 दिसंबर को होगी। ये मीटिंग पाकिस्तानी हुदूद में वागाह में होगी। पाकिस्तान की जानिब से मीटिंग की दावत दी गई थी, जिसे हिंदुस्तान ने कबूल कर लिया। 3 महीने कबल वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और उनके पाकिस्तानी हममनसब नवाज शरीफ ने डीजीएमओ सतह की मीटिंग की तजवीज़ पेश की थी। मीटिंग में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, जबकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी मेजर जनरल अमीर रियाज करेंगे। ख्याल रहे कि रवां साल पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन 150 बार फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की जा चुकी है। इसके अलावा उसके फौजी कुछ मौकों पर हिंदुस्तानी हुदूद में घुसकर हिंदुस्तानी जवानों को निशाना भी बना चुके हैं। अरब लीग और हिंदुस्तान ने बाहमी ताउन को परवान चढ़ाने के लिए याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। हिंदुस्तान ने फिलिस्तीनी कॉज की भरपूर हिमायत का इरादा किया है। 22 ममालिक पर मुश्तमिल अरब लीग और हिंदुस्तान ने बाहमी मफाद, इलाकाई और बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर मुज़ाकरात किए। शाम की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन भी मुज़ाकरात का मौज़ू रहा। I've conveyed our steadfast support to the Palestinian cause and expressed our support for the role played by the League in partnering the Middle East peace process towards the establishment of the State of Palestine with East Jerusalem as its capital. अरब लीग और हिंदुस्तान ने मुख्तलिफ मैदानों में बाहमी ताउन को फरोग देने का फैसला लिया है। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद और अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल नबील अल अरबी ने आला सतह पर सियासी रवाबित के लिए मुरत्तब करदा नए तरीक़ेकार पर रजामंदी का इजहार किया है। अरब लीग में शामिल ममालिक और हिंदुस्तान के बीच ताल्लुकात के फरोग के लिए आला सतह पर सियासी रवाबित को परवान चढ़ाने का मंसूबा है। तिजारत, सरमायाकारी और दीगर मैदानों में भी बाहमी ताउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया। बाहमी ताल्लुकात को परवान चढ़ाने के मकसद से अरब लीग और हिंदुस्तान ने ताउन के फरोग की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। सकाफती और तवानाई शोबों के अलावा दीगर शोबों में आइंदा 2 सालों तक बाहमी ताउन के लिए अरब लीग और हिंदुस्तान के बीच एक याददाश्त मुफाहमत पर भी दस्तखत किए गए हैं। याददाश्तों पर दस्तखत के बाद अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल नबील अल अरबी ने हिंदुस्तान और अरब लीग में शामिल ममालिक के बीच मुमासलतों को गिनवाने की कोशिश की। The background of the two areas here in India and in the Arab world are similar. We all came out of colonialism and maybe the same colonizer sometimes, and we are looking for the future to have our rights and to play a role in building the world. याद रहे कि अरब दुनिया के बेशतर ममालिक से हिंदुस्तान के काफी अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। आइंदा साल कुवैत ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करना चाहता है जहां हिंदुस्तान की सरकर्दा यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर और आला ओहदेदार अपने अरब हम मनसबों के साथ तबादले ख्याल करेंगे। अरब ममालिक और हिंदुस्तान के बीच $110 बिलियन से जायद की तिजारत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। चीन ने मिस्र को खित्ते की बड़ी ताकत करार देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि वहां के हालात में इस्तेहकाम आएगा। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने मिस्र के अपने हममनसब नबील फहमी के बीजिंग दौरे के मौके पर यह बात कही। चीन मशरिक़ वस्ता खित्ते में मिस्र को अपना कलीदी शिराकतदार तस्वुर करता है। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा नबील फहमी के बीजिंग दौरे के मौके पर चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि उनका मुल्क मिस्र के अवाम के मुल्क में सियासी निज़ाम को मुंतखब करने के हक का एहतराम करता है और उन्होंने कहा कि चीन मिस्र में इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की में अपना रोल अदा करता रहेगा। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीनी सयाहों को लग्जर और शर्म शेख जाने से मुतालिक अलर्ट हटा लिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर मिस्र की हुकूमत सरमायाकारों और सयाहों की सलामती को यकीनी बनाती है तो चीन से बड़ी तादाद मिस्र का रुख कर सकती है। वांग यी ने कहा कि चीन मशरिक़ वस्ता खित्ते में मजीद जंग और खून खराबे के हक में नहीं है और इलाकाई तनाज़ात के मुनासिब हल का ख्वाहां है।
اس موقع پر چین کے وزیر خارجہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ عرب ممالک خطے کی ترقی پذیر ممالک کے مفادات کا تحفظ کرنے اور عالمی سطح پر قیام امن میں اہم کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ چین مصر کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ نبیل فہمی نے ملک کے تازہ حالات سے اپنے چینی ہم منصب کو واقف کرایا اور مصر کو چین کے اقتصادی اور سیاسی سطح پر حمایت کا شکریہ